Hello. Am I audible? Yes. Yes, you're audible, sir. Okay. So I was asking, what was the homework for last week? Uh, we got one module to solve, scope 3 module. So you guys solved it? Activity book, actually. Activity book. You solved it? Uh, our group have not solved completely. Still, we are in between. So I think let's do that right now. What do you think? Okay. Who Okay, all that are will be there in better. the group? Who all are there in the group? Me, Nipun, and Dilipan in my group. Okay, so I think Rajusri, can you contribute to this group? Can you help them? Because Dilipan is not there today. Yeah, our group has already solved. Okay, so can you help the other team member? Yeah, no problem. I just came back from office. Okay. Uh, No worries, no worries. They will start solving wherever they will stuck. If you can help them, they will finish. yeah, sure, sure. कोई दिक्कत नहीं. Yeah, Okay. and let me know also if everybody is confused, I will solve it right away. Okay, I am also there. So actually, confusion was not there. Just the thing was, we didn't got time to complete it completely. Till category 7 only, we completed. So we need to do it. That's it. So another We're seven, able right? to do it. Another seven. Yeah. Okay, so then Yeah, finish another it. 7s are there to go. We also were doing till last minute only. Weekdays are very hectic. Yes, Uh, true, true. So let's we quickly did it. solve before because I can move to next chapter, but I want you guys to solve it. If everybody agrees in Okay. the class, including Nipun, that we should go to the strategy, I'm okay to start a strategy right away. What do you think, guys? You want to solve it now, or shall I start a new section? We should solve. We should know our understanding, I Okay, think. fair. So I have made you Poonam co-host. Share the screen. You, Nipun, try to solve it. Rajosri will jump in wherever is required. And if there is a trouble, then we will help you. Okay? Okay, 1 minute. So shall I start from starting or the place where we are currently, I'm currently in? Where you are currently, because there is no point. Already Rajosri has solved, right? So he doesn't want to learn. No, it is not that. I don't No, want we to should learn know, it. right? What we did is correct or not. Yeah, yeah, yes. They start from beginning. First we Okay. complete, then I guess we have to start from the beginning. No, no, Because no. it, It's not a if we, bad idea, Nipun. It's not a bad idea. Rajusri will also put his input because he has done. So if he finds anything unusual, he will jump in. And otherwise, I will review it. Yeah. You have to submit once you Rajusri. Once you complete, we have to submit, right? Then only I can evaluate and give you the feedback. Otherwise, it will be Oh like, yeah, I was just we were means our entire team was doing it just 1 minute ago also. Means just before the class we finished. It was a race against time. and that is why they So have we not did come not to the complete. class. That is why they have not come to the class, isn't it? No, they are coming. I think Varun and Gita, we three were doing. I think they might be joining. I don't Okay. know why No they. worries, no worries. Start Poonam from beginning itself. What all you solved, how you solved quickly, but make it little fast so nobody gets bored. Okay. Okay. Initial activity, Nipun can tell. Then later on, when categories will come, I will be explaining it. Nipun, is it okay? yeah, no worries. Okay. So first activity is the classify the emission source. So first one is diesel used in a company owned truck. That will be scope one. Okay. Then electricity from the grid for HQ headquarter office. That is scope two. Then third one is air travel by employees for client meeting. Am I audible? Yes, yes. Air travel by employees for client meeting. That is scope three. Category six, business travel. Fourth one is steel purchase from supplier for manufacturing. That is scope three. Category two, capital goods. Capital goods in case if it is used to create a facility, and purchase goods if getting used to manufacture the product.
Fifth one is refrigerant leakage from chillers in the factory. That is scope 1, fugitive emissions. Sixth one is electricity used by customer to operate sold appliances. That is scope 3, category 11, use of sold product. Seventh one is waste sent to landfill from operations. That is scope 3, category 5, waste treatment, waste from operation. Eighth one is employee commuting in personal vehicles. That is scope 3. Category 7, daily commuting. Ninth one is emission from third-party logistic shipping finished goods. That is scope 3, category 9, downstream transportation and distribution. 10th one is emission from a JV where company has 30% equity, no control. So approach will be equity approach, 30% scope 1 and scope 2 emission under operational control, no scope emission. Are we right here, sir? Can you give your point? Sorry, I didn't get you. Come again. Sir, For this, 10th point, yeah. emission from a JV where company has 30% equity and no control. So we selected equity approach where 30% scope 1 and scope 2 emission will be calculated, and operational control, there will be no emission. Then what is the reason for the same? Why you have, when there is no control, why did you use equity method? We should go with operational control, right? We are going with operation control only. We told like if company has selected equity approach, then this will be considered. If not, then this one. Operational control. Yes. Okay. Why you have given alternatives? I didn't understand. You know that, right? You have to select one method and Okay. stick with that. You can't give two methods. Are you with me? Do you Yes, remember yes. that slide yes. where I put very clearly that you have to select one method and stick with it? You can select equity, you have to justify. You can select operation, which looks a genuine case here, you have to justify. Clear? Okay. And stick with whichever you select, stick. Don't put your your legs into two boats. It will always be a troublesome exercise. Clear, Nipun? Okay, Activity, so yes. hmm. So Nipun, you are found- presenting? Tell. yes. Boundary memo for Verdant Tech Manufacturing Limited. So here consolidation approach was asked. So we selected operational control approach because this approach will include 100% of emission for all controlled operation, own factory and leased warehouses. Emission from outsourced logistics will be reported as scope 3, sourced from third party. Which entities, the second one is which entities are in scope 1 plus scope 2. So 100% for the two factories that are owned by Verdant Tech and 40% of the occupied and controlled warehouse operations. Which scope 3 categories are clearly relevant? So we have category 1, that is purchase goods and services. Second one, we had category 4, upstream transportation and distribution. Third one was category 8, upstream leased assets, that is warehouse. Category 15, investment, that is 35% of JV, and category 11, use of sold product. Sir, we got confused in this But one. I think One category category 15 is with respect to your financed emissions. Not sure if category 15 might be coming for this company at least. It's mostly for banks, and the relevant one, I don't think so. It will be of high relevance. Investments, no. Rajashree, investment doesn't mean only finance company investments. Even a lot of companies do have investments if it is below 20%. Yeah, there is a criteria, correct? That when it will be called as an investment. Here it is written clearly, it's a JV.
Hmm. It's a JV, right? So that Correct. is the reason we may drop. We may again. It is not a very clear forward. You want to Yeah, report? so that Why is can't what you it report? is not an investment. No, it is not an investment. It is not investment. It is JV. It's written clearly. Correct. Okay. Correct. If it That could is what have been I'm saying. investment, I would have considered 15. Yeah, Okay. then it would be okay. Yes, because that is why I also did not put category 15, Yeah, and thinking that but don't put that label that if I am an investment company, then only it will be counted. You know, there is a debate going on with Government of India versus Tata, right? That whether the Tata Sons should be counted as a NBFC, large NBFC or not. Are you aware about this, guys? Have you heard? uh, but 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 Tata Sons, it is saying that it is just a investment company, right? Yeah, means they are saying they are not investment company. Tata Sun is saying that this is my private investment, right? So No, point no, here no. is Investing company means NBFC. It's not a banking company, right? It's a investing company, as in it is a shell means it's a holding company, Tata holding company. Sons. They are debating holding company, but they have a UL or upper layer requirements, right? That Government is of India Tata is Capital. That is no, Tata Capital, no, right? no, 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 no. Tata Sons is debated under right now under UL because Tata Sons invest in all their subsidiary, right? Okay, And they got it. are holding company, literally holding company. The debate is they are Yes. holding company. They say that I cannot become a bank. And Government of India is saying that because you are investing in so many companies and the amount is very high, first of all, you are NBFC. Second of all, you are, acting like as a bank because you are putting a complete infrastructure. And one company Uh, goes down, the whole ecosystem will be challenged. The India economy will be challenged. You got the point, Rajoshree, right? Now leave that point because other ठीक kids है will get confused. Coming ठीक है back to ठीक है them, the answer is very simple, Nipun, because it is written JV. And now you have selected, you already said this JV I will covered into either equity or control model. You are considering into control model, right? You will report under control model. When do you report under control model? When you are reporting scope 1 and 2, correct or wrong, Nipun? You have to reason it out, Poonam, Yes, Nipun. sir. Yeah, if you will Yes, not sir. reason, you will not understand. You have to reason. You have to tell yes, no, maybe. Yeah. So you Hmm. put this, ignoring the fact it is a JV, and JV is gets distilled at a scope 1 and 2 level itself through the organizational boundary setting. Once boundary is set, then you are talking about a scope 3, right? And the scope 3, I'm again giving you thumb rule, always debatable. Scope 3, category 15 is investments. Now, that doesn't mean don't always go and label them. If it is a finance company, then only they can talk about investment. Even though they are not finance company, but they are doing investments. Okay. Many company does because they have a lot of cash. Just say Apple has huge cash on their books. Do you think they keep in the saving account? Absolutely not. They will buy some kind of fixed deposit, some kind of bonds. They will keep it in a liquid form, but not exactly cash. Okay. In that case, category 15 can be talked about. Clear, everyone? Not in case of JV or subsidiary. If you are doing a JV or subsidiary, you cannot account here. कहीं लिख के रख लीजिए आप लोग ये बहुत अच्छा हुआ आपने रेज किया पूनम एंड निपुन वेरी गुड यू आस्क्ड यस Okay. नाउ दिस विल बी क्लियर फॉर एवर लिख के रखना है क्या लिख के रखना है कि पहला जेवी का बात जब होगा तो इट इज अ इक्विटी वर्सेस कंट्रोल मॉडल का डिस्कशन सेकंड we are talking about any company investment. Mostly it is finance company investment, mostly, but doesn't mean that all finance company. Okay. There can be a large company which is doing investment. Now, investment generally, thumb rule is less than 20%. You cannot do, own a company with 30% and say that I'm just doing investment. Yeah. इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो ना आप कि वो उसके रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो वो डूब भी गया तो चलेगा दैट इज द इन्वेस्टमेंट राइट डूब गया तो चलेगा नहीं लेकिन रिस्क ज्यादा रहा तो भी चलेगा है ना बिजनेस मेरा रुक नहीं जाएगा मेरा कोर बिजनेस स्कोप 1 एंड 2 है कोर जो इमिशन आ रही है वो कोर बिजनेस से आ रही है वो स्कोप 1 एंड 2 है जो पेरिफिलर से आ रही है वो मेरी इन्वेस्टमेंट से आ रही है एंड दैट इन्वेस्टमेंट थंब रूल लेस देन 20% एनी कंपनी thumb rule again finance company mostly yes and the moment you see JV please check
Did I cover it in scope 1 and 2 or not? If I have already covered, why I'm repeating? I'm doing double counting or not? ये तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा ना, पूरा आपका डॉक्यूमेंट ही डबल काउंटेड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ राजश्री? If I put it in scope 1 and 2 and then I'm putting the same emissions in scope 3, will I not be doing double counting here? Double counting. डबल Yes, काउंटिंग yes. हो जाएगा। हो जाएगा ना? Hmm. कोई बात से मिस्टेक नहीं करना है। गुड, यू हैव डन दैट, यू विल नेवर डू इट अगेन। यस गीताई, यस दिलीपन, गुड। वरुण, everybody is on board? Got it? Yes, yes. Yes, sir. Okay, go ahead. Next. We got stuck here for some reason because we didn't understand which category to exclude. कौन सा we did not understand? One category likely excluded with reason. This one. Warehouse. So here, sir, we were thinking that downstream leased assets, nothing was mentioned about this, so we included this. And franchisees also, because nothing was included about it, so we included it. So one more debate we were having about the waste treatment. Base treatment, okay. So it can be included or not. क्या इंक्लूड करना है? मैं समझा ही नहीं। मैं I didn't get the question itself. राजेश्री Okay, or Varun, or Gitai, did you get the question? Or we were thinking Question that was- waste treatment should it Waste go treatment, अच्छा waste for treatment, this, okay. but waste treatment, I understand. See, I understand that waste treatment might not be important, but still, if you are a manufacturer of a pump company, let's say steel It will ka definitely company be hai, you there. are. Yes, there will be certain scrap and all. There will be certain waste treatment, and there will be some chemicals also which is used for in making those things. So that will be also. So there will be both hazardous waste and non-hazardous waste. यहाँ पे Yes. I exclude think waste will be there. Of course, category. the small, but whole category में आएगा. Yeah, गीता ही बोल that's रहे why थे, we हाँ, didn't बोलो, बोलो. included it, and we सर यहाँ considered पे category कैटेगरी 13 and 14. एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना, क्योंकि वेस्ट तो जनरेट होगा तो वो काउंट होगा स्कोप 3 में। It is downstream leased asset, not waste 13. मैंने चैलेंज कहा है, मेरे को अभी भी नहीं समझा है। तो आप लोग वो क्वेश्चन दिखाइए पहले। शो मी विच क्वेश्चन इज ट्रबलिंग यू। सर विच वन The co- कैटेगरी? One category should be excluded. Correct. So Yes. which one you are excluding? You are saying I am west from operation. That is category 5. Why are we debating it down? No, no, no. No, We are sir, not- we have mentioned category 13 and 14 Okay. that we will be Okay. excluding. Okay, that is okay. That's perfect. 13 and Yes, so doubt was, can we, this waste treatment category should be excluded? West That treatment can का- also come in this line. अच्छा, Waste from operation. वेस्ट फ्रॉम ऑपरेशन आपको क्यों Yes. एक्सक्लूड करना चाहिए, पहले ये बताइए। गिव मी द रीजन व्हाई यू वांट टू एक्सक्लूड। Waste from We don't want to operation. exclude. हाँ, तो फिर क्यों लिखना है वहां पे? Okay. आपको अगर करना है तो यू हैव टू जस्टिफाई। ऐसे ही थोड़ी निपुण मन में आ गया तो कर देंगे कोई भी कैटेगरी एक्सक्लूड। क्योंकि पर सर वो वेस्ट पर जनरेट सर हमें होता वो है तो एक्चुअली वो क्लियर भी नहीं था कि एक्सक्लूड करना क्या है। अच्छा, तो एक्सक्लूड क्या करना है आपको? वो- एक्सक्लूड तो अच्छे, हाँ ठीक है। तो दैट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। यही नहीं समझ में आया सर कि एक्सक्लूड क्यों ही करना है। तो आपको पहले समझना है कि एक्सक्लूड इसलिए करना है कि सारा आप रिपोर्ट कर ही नहीं सकते बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। डोंट फॉरगेट दैट डिस्कशन एंड द चार्ट। क्या चार्ट था हमारा कि 7 to 8 कैटेगरी पीपल रिपोर्ट इन जनरल, राइट? टोटल है 50% का रिपोर्टिंग होती है इन जनरल। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 50% करूं, 60% करूं, 70% करूं, 80% कर सकता हूं। बट डेफिनेटली आई विल नॉट डू 100% अननेसेसरली। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी 15 नंबर तो मैं करूंगा ही नहीं ना, क्योंकि वो है ही नहीं इस बिजनेस में। क्या बिजनेस का है? व्हाट इज द बिजनेस बैकग्राउंड? वेदांत टेक क्या है? क्या है वो बिजनेस? क्या है? किसी ने समझा है? व्हाट इज द बिजनेस? पम्प Pump इंडस्ट्री manufacturing From company. manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग है। तो फ्रेंचाइजी मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या? जनरली नहीं करती है।
एक्सेप्शनल में कोई होगा जो करता होगा फ्रेंचाइजी उसमें भी कि भाई मैं भी मैन्युफैक्चर करूंगा, तुमको फ्रेंचाइजी दे दूंगा, तुम भी मैन्युफैक्चर करो, ऐसा होता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो भी ओनरशिप इसी कंपनी की रहती है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग लगभग जीरो है। तो मैं फ्रेंचाइजी तो कभी नहीं कर सकता, राइट। नाउ वेस्ट फ्रॉम ऑपरेशन में क्यों एक्सक्लूड करूंगा निपुण और एनीबडी एल्स ऑन प्लानेट अर्थ? हाउ दे कैन एक्सक्लूड? सर्कुलरिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा निपुण? Yes, yes, yes. कितना मेहनत करके हमने उसको पढ़ा कि 10% से नीचे करना है, सर्कुलरिटी इज अल्टीमेट कंसेप्ट, 1960 से कंसेप्ट चल रहा है। वी विल बी टोटली आउट ऑफ मार्केट इफ वी डोंट अंडरस्टैंड सर्कुलर, ये सब सीखा हमने। आप बोल रहे हो कि उसी को एक्सक्लूड कर दो वेस्ट फ्रॉम ऑपरेशन, तो फिर कैसे Like आप that's why सर्कुलर? we नहीं, didn't exclude एक्सक्लूड it. एक्सक्लूड हाँ तो एक्सक्लूड दैट इज करने के लिए गुड। नहीं सर, एक्सक्लूड Yes. करने के लिए नहीं था। नहीं, आपने बोला ना कि सर क्या एक्सक्लूड करना है, और हमें लगा कि वेस्ट फ्रॉम ऑपरेशन करना चाहिए, इसलिए मैं उसको उस पे हाईलाइट कर रहा हूं। उस पे वो ग्रुप में सर डिबेट चल रही थी हाँ। कि मतलब रखना है कि नहीं रखना है ऐसा। तो वो स्टेप पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि कम्यूट भी होगा, सब कुछ होगा, तो एक्सक्लूड करेंगे क्या। तो उस पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। तो नहीं, स्टार्ट करना है जो ऑब्वियस है निपुण। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू कैन फाइंड लो हैंगिंग। तो जैसे फ्रेंचाइजी आपने फाइंड कर लिया, करेक्ट है, फाइंड यस, कर लिया आपने। अब कैटेगरी 313 आपने लिखा है वहां पे, लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे ये बताइए। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो चीज वो बनाएगी किसी वेयर हाउस में तो रखेगी ना बनाने के बाद। आप समझ रहे हैं, यहां से आपको ऐसे पीछे आते जाना है। और हमेशा याद रखिए कि डाउन स्ट्रीम में हमेशा लो रिपोर्टिंग होती है कि नहीं होती है निपुण? डाउन स्ट्रीम का हम लोग चार्ट देखा था, याद है? अप स्ट्रीम के सारे रिपोर्ट हो रहे थे, नंबर्स काफी यस, हाई थे। डाउन स्ट्रीम वाले सारे चार्ट्स में छोटे बार ग्राफ थे। बार ग्राफ याद है आप लोगों को? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, है ना? Yes, yes, yes. I remember because करेक्ट। people do not. Those are most estimates. हाँ People do तो not तो report. प्रैक्टिशनर क्या करता है ना, वो बैकएंड से चालू करता है एक्सक्लूड करने का डिस्कशन। सो निपुण, नेक्स्ट टाइम टीम डिस्कस करेगी तो उसको बोलना भाई स्टेप अप्लाई करो ना, ऐसे ही हवा में क्या बात कर रहे हो। सर ने क्या बताया था कि कौन सा कम रिपोर्ट होता है, तो सबको मालूम है डाउन स्ट्रीम के सारे कम रिपोर्ट होते हैं। वहां से चालू करो, वन बाय वन टेस्ट करो आप। तो पहला आपने किया फ्रेंचाइजी, एक्सक्लूड कर दिया। इन्वेस्टमेंट किया, आपने तो इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहां पे एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कोप 1 और 2 में कवर हो गया। 14 15 हो गया एक्सक्लूड। अब आइए 13 पे, डाउन स्ट्रीम लीज एसेट। मैन्युफैक्चरिंग अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना मटेरियल को। food यस, manufacturing, machine manufacturing, you do it anything. You have to store it somewhere, regionally, locally. अगर मान लो बहुत छोटा है ऑपरेशन तो भी कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना उसको अपने वेयर हाउस में। करेक्ट है कि नहीं एक है? और चीज यस, एक यस, और यस। चीज विवेक हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से मैंने वो निकाला था कैटेगरी 10 विच इज प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिकॉज डाउन दिस इज स्ट्रीम में फिनिश्ड आता है। गुड्स। हाँ बहुत अच्छा है, आपका लॉजिक एकदम सही है। आप पहला क्वेश्चन उसमें पूछो डाउन स्ट्रीम में आता है क्या, हाँ। प्रोबेबिलिटी इसके एक्सक्लूड होने की ज्यादा है क्या, हाँ। तीसरी क्वेश्चन पूछो कि इन दिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पहले तो बिजनेस को समझना है। अच्छा एक बात और प्रोसेसिंग ध्यान नहीं होती। रखिएगा, दिस वाज अ फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज सो आई डिडंट आस्क यू गाइस, बट फाइनल में तो ऐसे भी मैंडेटरी है। यू हैव टू राइट अ मेमो। जब भी आपको एक्टिविटी मिलेगी ना, यू हैव टू राइट अ मेमो टू योर पीपल हु आर गिविंग यू दिस एक्सरसाइज। आप कंसल्टेंट हो तो भी करना पड़ता है, आप इंटरनल एम्प्लॉय हो तो भी करना पड़ता है। फाइनल में तो एग्जैक्टली हमारा वही रेप्लिका है कि आपको करना ही करना है। आप अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे तो आपका रिपोर्ट ही सही नहीं आएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं होती है, आपको मांगना पड़ता है दूसरी बार, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से ये याद रखिएगा और लिख लीजिए प्रैक्टिशनर नोट में, अगर आपने बनाया है प्रैक्टिशनर नोट, कि ऑलवेज आस्क फॉर मेमो। ठीक है? तो मैंने आपको एक्टिविटी दिया, आपने क्वेश्चन मेरे को शूट बैक करना है। सारे क्वेश्चन, जैसे अभी कैसे आप कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन क्लास में आके पूछ रहे हो, वही आपको क्वेश्चन में डाल के भेज देना है नेक्स्ट टाइम से। ये टाइम अलाउड है, यू आर लर्निंग, सो आई एम ओके, आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन। बट नेक्स्ट टाइम इमीडिएटली आपका जो डिस्कशन है ना, वो निगेटिव ना करके वहां पे आप बैठ के उसको नोट डाउन करिए कि सर ओके ठीक है, हो सकता है कि ये गलती हो क्वेश्चन में, लेट्स आस्क फ्रॉम द पीपल हु प्रोवाइडेड अस, राइट? पुट एज ए क्वेश्चन एंड सेंड इट बैक टू योर team who has provided you the data. Is it clear everyone? Practitioner note में क्या लिखा आपने? Always ask question on the data provided to you the moment you have a doubt.
है कि नहीं है? कि वही केवल बोलने का, "हाँ, हमारा तो प्रोडक्शन टीम बेकार है, लिथार्जिक है"। बोलते रहो फिर ये चेस में बैठ के, नो बडी विल रिस्पेक्ट यू इवन। यही होता है ना, सारे डिपार्टमेंट साइलो में क्यों काम करना चालू कर देते हैं? एक दूसरे को गाली देते बैठते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? तो हम अगर सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं, हमारा पहला ड्यूटी है कि हमें कोऑर्डिनेशन सबके साथ रखना है। वो सपोर्ट करे या ना करे, हमें उनको पोक करके सपोर्ट लेना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ये आपको समझ में आ रहा है? न्यूआंस है अगेन, बहुत छोटी बात है, लेकिन आप मानोगे नहीं, लीडरशिप की जितनी ज्यादा जरूरत सस्टेनेबिलिटी है किसी और डिपार्टमेंट में है ही नहीं। यस सर, आई एग्री। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साथ अगर उनकी दोस्ती नहीं है ना, वो कभी डेटा आपको करेक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपको लिथार्जिक बना के रखेंगे। और लास्ट डे, याद रखिएगा, अगर मेरे को आपको खुन्नस है ना आपसे, लास्ट डे सारा डेटा उठाऊंगा और सेंड कर दूंगा आपके ईमेल में। अब मरो आप। कितने लोगों ने फेस किया है? नहीं लास्ट सर। डे, लास्ट डे वो सारा डेटा उठाएगा। पहला पूरा 6 महीना आपको वेट कराएगा, बोलेगा है ही नहीं, करते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। राजश्री वो आपको भी आता होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में कभी बनाया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं हाँ ये सब। या, और लास्ट डे उठाएगा और सेंड कर देगा ईमेल में, और प्रूफ ऑडिट रख के लेगा टाइम। कि मैं, हाँ, हाँ, इसीलिए ऑडिट के एक दिन पहले। ऑडिट के एक दिन पहले, और बोलेगा सर मैंने तो प्रोवाइड कर दिया था। तो यस सर। खुन्नस, निपुण, ये आप तो यंग हो तो आपको थोड़ा ज्यादा सीखने की जरूरत है इस चीज को, और एज ए लीडर यू हैव टू पिक दिस अप। ओके, कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, उनको रखने दीजिए कि वो घटिया लोग भी होने दो, ब्लू कॉलर जॉब वाले भी होने दो, हमारा ड्यूटी है कि हम उससे डेटा निकाल के लें। क्लियर है पूनम? Yes, हमारा sir. काम क्या है? हम डेटा निकाल के किसी भी हालत में उनसे लें, और उन अच्छी Or बात करने के लिए, have the track that we ask for the data. एंड हैव द ट्रैक, उसके लिए वो मेमो भेजना है। क्लियर हो गया सबको? गुड जॉब। यस Yes. सर। इसलिए मेमो भेजना है। इमीडिएटली आपको मिला एक्टिविटी, सारे क्वेश्चन नोट करिए। पहला काम यही करना है, नोट करना है क्वेश्चन। ओके, तुमको कहाँ डाउट लग रहा है, तुमको कहाँ डाउट लग रहा है। ये रिलेवेंस मैट्रिक्स वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है, ये 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन हाँ, नहीं पूछोगे इस पे। ये जो अभी आप ओपन करके रखी हो वो सॉल्व ही नहीं होगा 2 मिनट में, अगर आप कंफ्यूज हो यहाँ पे। we spent lot of time yesterday on this only and आई then नो stuck. एवरीबडी इज स्टक, लास्ट बैच ऑल्सो इज स्टक, वी नो वेयर पीपल स्टक, राइट? तो इसके लिए ही क्वेश्चन बना के भेजना है कि सर इसमें चाहिए क्या निकाल के मुझे। आपको पर्पस मालूम है क्या इस टेबल का? आप समझ रहे हो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा Judgment. था आपसे? जजमेंट, आपका जजमेंट, ऑब्वियसली आपका जजमेंट स्कोर चाहिए। स्कोरिंग के हिसाब से जो मटेरियल टॉपिक है वो सिलेक्ट करना है। हाँ, हाँ, materiality. मटेरियलिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो मटेरियलिटी साइलो में बैठ के होगा कि लोग से बात करके होगा? लोगों से बात करके ही होगा। लोगों के बात करना तो मैंडेटरी है ना उसमें। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू, एंड हाउ इम्पैक्टफुल इट इज फॉर द कंपनी। करेक्ट? ये दो मेटोरिटी में क्वेश्चन पूछते हैं। आपने हमें भेजना चाहिए था ना ये क्वेश्चन, कि सर आपने दिया है, ये विदाउट फीडबैक मैं कैसे फिल कर दूं, अपने मर्जी से कर दूं क्या? तो मैं आपको बताता नहीं, आपके पास 5 लोग हैं, एक सर्वे क्रिएट करो, उनके पास भेजो, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, पांचों का एक सर्वे बनाओ, उस सर्वे को आप फीड करो, और फिर मेरे पास आओ और रैशनल दो कि सर देखिए मैंने 5 लोगों के पास किया था और ये रिजल्ट मिला है। अभी क्या होगा, अभी राजश्री का मन आया तो राजश्री लिखेंगे, पूनम का मन आया तो पूनम लिख देगी, या जो ज्यादा बोल हम लोग सकता यही है कर उस, रहे थे कल. और जो ज्यादा बोल सकता है उस सेशन में, वो अपना लिखवा के ले लेगा। अरे तुमको क्या मालूम है, सर को भी नहीं मालूम, मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ। या वो अपना लिखवा के ले लेगा, बाद में उसको बोलोगे जस्टिफाई करने के लिए तो उस खुद चुप बैठ जाएगा। है ना? वो दिलीपन तो आ जाए नहीं, किधर है दिलीपन? वो कंट्रीब्यूट किया था कि नहीं किया था? वी नो ऑल दिस डायनामिक, वी हैव बीन देयर इन द सेम सीट वेयर यू आर सिटिंग। ओके, सो ऐसा नहीं सोचिए हम वहां नहीं बैठे थे। मोर देन हाफ एन आवर तो हम लोग इसको देखने में ही चला गया कि ये चीज है क्या, करेंगे क्या इसका। नहीं नहीं, मुझे भी चाहिए था कि आप वेस्ट करो थोड़ा टाइम, तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी सतर्क कि टाइम बचाना। देखो आपका आधा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आप इस पे डिबेट किया। आप पूछो अदर ग्रुप से, राजोश्री कितना टाइम आपने इसमें डाला होगा? हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था काम। हाँ, सी स्मार्ट गाइस। सर हम इसलिए लोग मैंने बहुत को रिसर्च किया इस पे। हाँ, रिसर्च किया और ना। गीताई दिमाग गीताई तो। का ये क्वेश्चन था। और मैंने चार क्वेश्चंस मैंने किए, गीताई ने 3 किए, और वरुण ने 3 किए, तो ऐसे करके डिवाइड करके कर दिए, नहीं तो That's फिर good. बहुत। तो उसकी वजह से आपका कंप्लीट हो गया। देखो, हाँ, एडवांटेज क्या है, अदर ग्रुप पूनम, दिलीपन, वरुण, राइट,
ऐसा ही करना है। आप बैठ के डिस्कस करना है कि किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या चैलेंज हो सकता है, वो डिस्कस करना है। सर को क्या क्वेश्चंस भेजने हैं वो डिस्कस करना है। टीम को आप क्वेश्चन भेज दोगे, संदीप इमीडिएटली विद इन 8 आवर्स 9 आवर्स ही विल रिस्पॉन्ड, राइट। आपको आंसर्स मिल जाएगा। तब तक आप अपने को रोकना नहीं है कि अब आंसर आएगा तभी काम करूंगा। आपने क्वेश्चन भेज दिया, आपके पास लॉग बुक रेडी है। ये रियल वर्ल्ड का प्रैक्टिस है। आपको जो बोल रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, दिस इज हाउ यू विल विन। Otherwise, you will be always late with your submissions. And late submissions किसी को पसंद नहीं आता, including investor in your board of director. They hate late submitters. They think you are lethargic. आप बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप हो। ये जनरल परसेप्शन सीनियर मैनेजमेंट का होता है कि यू आर लिथार्जिक। आप बात समझे ना? वो ये नहीं सोचते हैं कि बहुत टफ होगा टास्क, बैठ के इन लोगों ने काफी डिबेट किया होगा, टाइम गया होगा। वो सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं चाय पिया होगा, बिस्किट खाया होगा उधर टेबल पे बैठ के, बड़ी बड़ी बातें सबने की हो, अपने घर में जाके सो गए होंगे। आर यू गेटिंग पूनम? Yes, sir, we are getting. मेरा मेरा 2 रातें मिली है सबको, और आप फिर भी बोल रहे हो कि सर बहुत बिजी था। रहे, ऑफ कोर्स सब बिजी है, मैं भी बिजी We हूं are ना। getting it. We are getting it the hard way. नहीं नहीं, तभी आप भूलोगे नहीं। मैं इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देन यू विल नेवर फॉरगेट। दिस इज योर फर्स्ट रियल टफ एक्सरसाइज। सो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड यू गाइस टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक, बिकॉज वर्ल्ड इज नॉट सो नाइव, राइट, कि हम लोग कुछ भी करेंगे और समझेंगे कि सामने वाला मान लेगा। नहीं मानेगा यार। वो, या तुम, मैं नहीं मान रहा हूं, आप सोचो कि इन्वेस्टर कैसे मानेगा? वाई ही विल अग्री विथ योर थॉट प्रोसेस? वो आपका पैसा Yes, sir. लेके बैठा है क्या? वो बोलेगा तुम मेरा पैसा लिया है, मेरे को जस्टिफाई करके तुमने देना है, मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछना, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से रिलेवेंस स्कोरिंग मैट्रिक्स जो है, स्क्रीनिंग मैट्रिक्स जो आप बना रहे हो, उसका पर्पस आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए, सर आई अंडरस्टूड दिस इज द पर्पस, कैन यू क्लैरिफाई, इज दिस द पर्पस? आप ये भी कर सकते हो, इफ यू आर स्मार्ट एनफ यू कैन रिड्यूस दैट एक्सपोजर। नहीं है तो क्लीन पूछो, है ना? वरुण, यू कैन जस्ट राइट ए ईमेल saying that please justify that what exactly you want me to do here, क्योंकि मैंने ये तो आपको पढ़ाया नहीं। देखो, Hmm. ये जो प्रोसेस है, मेटरनिटी इज जीआरआई रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज होता है, या बीआरएसआर रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज होता है। जीएचजी बनाने के लिए नहीं लोग यूज करते हैं। लेकिन दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ईएसजी प्रो, कि आपको जो भी कैटेगरी रिपोर्ट करनी है उसके रिलेवेंस को फाइंड करना है, सो दैट यू कैन जस्टिफाई इन योर रिपोर्ट। हमें मालूम है मार्केट 50% ही रिपोर्ट कर रही है, बट आपने क्यों 50% किया? यू हैव टू जस्टिफाई। राइट नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन और नॉट? Yes. आपने भी वही क्वेश्चन मेरे से पूछा, मैं भी आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भाई आपने छोड़ा क्यों, ये बताओ। तो आपने क्या करना है कि पूरी टीम को इंगेज कर देना है उस प्रोसेस में। और ऑलरेडी आप ईएसजी रिपोर्टिंग में वो यूज कर रहे हो मेथड, डिप्लॉय द सेम मेथड हियर। नाउ टेल मी व्हाई यू हैव गिवन 3 influence and size significance for category 1. Tell me that, and you will start getting the feel of it. क्यों आपने 3 3 लिया? Like a three we gave because whatever we will be purchasing goods and all will be having the high impact. So like if I'm purchasing the some like coal or we will say aluminium that is having higher emission rate, then it will be having the higher impact. ओके, तो पहला यार आपको, अच्छा, एक रेफरेंस आई थिंक यू गाइज नो, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग फॉर पीपल हु माइट बी लिसनिंग टू इट, माइट नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। वी हैव डन अ एक्सरसाइज कॉल्ड स्क्रीनिंग। एक हमारा पीपीटी में एक स्लाइड था स्क्रीनिंग वाला, डू यू रिमेम्बर 7 स्क्रीनिंग स्लाइड? कि कैसे स्क्रीन करना है कि विच रिलेवेंस मैट्रिक्स, विच पर्टिकुलर कैटेगरी शुड बी रिपोर्टेड। डिड वी डू और नॉट? याद है कि नहीं याद है? You were saying that the Yes. companies have to report just three categories that is required and कौन सा नहीं करना है, you नहीं 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 discussing नहीं that. नहीं, राजश्री, राजश्री, अगेन लिसन टू मी केयरफुली। आई एम आस्किंग, डू यू गाइज रिमेम्बर वी डिड अ स्लाइड फॉर स्क्रीनिंग categories? There is a 7 screening criterias which we discussed. Do you remember that? There was a slide in a scope 3 discussion. Part 1, part 2 में नहीं था, part 1 में था। part 2 में तो हमने डेटा वगैरह किया ना। किसकी Screen. को याद है स्लाइड? ये दिखाना पड़ेगा।
ये वहां से आ रहा है। देखो आप लोग को पर्पस मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन वो स्लाइड याद नहीं है जहां ये स्लाइड पे मैंने दिखाया हुआ है आपको। किसी को क्लिक हो रहा है, किसी को चमक रहा है? चलो मैं दिखाता हूं तो चमकेगा, हो सकता है देखने के बाद से याद आ जाए, है ना। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको हर एक कुछ याद करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आस्क, because if you will not ask, you will never learn. Yes, can you see my screen, everyone? Yes. Noted. Okay. Can you see it now? Yes. Do you remember this now? हाँ, size inference risk. Yep. इसके पहले दिखाया था क्या एवरेज चल रहा है, इसके पहले दिखाया था कि लोअर में क्या एक्सक्लूड करना है, स्लाइड था, है ना। Yes. नो इट्स नॉट शोइंग इट, टेकिंग टाइम। यस, सो यहाँ पे ही मैंने आपको क्राइटेरिया दिया था, ये क्राइटेरिया है। Okay, what is this criteria is doing, why you are using it? Here you have to give the ranking for each of my category in order to select those category which will form part of my report, upstream and downstream report, है ना। तो जिसको लोएस्ट स्कोर मिलेगा उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो क्वेश्चन पहले दिया गया था उसका आंसर थोड़ी देर के बाद आपको खुद ही मिलने वाला है। 3.52 में आके आप सेम चीज सॉल्व कर रहे हो जो आपने पूनम पहले क्वेश्चन पूछा है, क्या एक्सक्लूड करना है, बात समझ रहे हो। तो आप Yes. जस्टिफिकेशन इस टेबल का दे सकते थे कि एक तो जस्टिफिकेशन आपका रैशनल आ जाएगा, दूसरा जस्टिफिकेशन प्लीज रेफर दिस टेबल वेयर वी डिड दिस स्क्रीनिंग एंड वी फाउंड आउट द लोएस्ट स्कोर बियरर शुड बी एक्सक्लूडेड। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, आप देखो। Yes, sir, I found it. Sorry, I got muted. You heard me, right? Hello? Yes, yes. Yes, sir. Okay, okay. So can you share back, Poonam? So I will tell you that one, you have to give the rationale in the before slide, why you are excluding certain thing and why you are including certain thing. And you can refer to this scoring matrix of 3.2. ये स्कोरिंग मैट्रिक्स आप वहां पे रेफर कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। एक टोटल का आपको इसमें कॉलम डाल देना है, लास्ट में टोटल आप डाल दोगे, Okay. सारे को ऐड कर दोगे, अपने आप मालूम चल जाएगा कौन हाई रैंक कर रहा है, कौन कौन लो रैंक कर रहा है ना। एंड देन यू कैन से दैट बेसिस ऑन दिस आई एम रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग। क्लियर है सबको? Yes. ओके, अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? 3 डायमेंशनल ग्राफ बनता है पाइथन लगा के, याद रखना। या अगर आपको वाइब कोडिंग आती है तो वाइब कोडिंग से भी बनता है ना। क्योंकि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मेटरलिटी असेसमेंट यही लोग अभी भी मार्केट में सिंगल मतलब 2D ग्राफ दिखाते हैं, रॉन्ग है ना। अल्टीमेट ग्राफ नाउअडेज पीपल हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस एंड दे आर शोइंग इन 3D। 3D मतलब पूरा 3D नहीं दिखाते हैं, उसमें वो 3 मैट्रिक्स डाल के दिखाते हैं। और डबल मेटरलिटी मैंडेटरी है। heat map, Rajushree, you know heat maps, right? Which is used for 3D representation of any data. So 3 dimension you can show through the heat maps. So that also Okay. can be used, है ना। तो अभी आप समझ गए क्यों। अब आइए एक दो का हम लोग इसमें कर लेते हैं क्विकली, बिकॉज इफ आई हैव टू डू अगेन हाफ एन आवर मिनिमम एंड यू आर राइट इट विल टेक टाइम, या बट आप Yes. पहले इक्विप तो हो जाओ तब टेक टाइम करो, नहीं तो सब आदमी अपना अपना डालेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो परचेज गुड एंड सर्विस सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट है क्या? एब्सोल्युटली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परचेज गुड एंड सर्विस हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, सेक्टर वाइज भी। साइज बड़ा होगा क्या? अब ये डिबेटेबल है, साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा ये डिबेटेबल है। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो Service प्रोडक्ट, company है. हाँ ये If service company is ऊपर जाना, there, एक बार then purchase सर्विस है कि goods. मैन्युफैक्चरिंग, एक बार ऊपर जाना, ये डिबेट हो जाएगा नहीं तो फिर तो। It is This is a manufacturing company. मैन्युफैक्चरिंग manufacturing है, company. Manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग है तो साइज बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है। रॉ होगा मटेरियल 50% तक लेता है, 70% तक होगा कॉस्ट हो सकता है, तो इसका साइज बड़ा हो सकता है। तो देन अगेन इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। सो 3 ये भी करेक्ट है। अब इन्फ्लुएंस करेगा क्या मेरे सारे डिसीजंस को, कार्बन इमिशंस को? कर सकता Yes. है,
अगर कोल है, हम्म, अगर फ्यूल है, स्टील आप बाई कर रहे हो, कोई चीज भी अगर आप बाई कर रहे हो और उसमें कार्बन इमिशन हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। क्लाइमेट रिस्क ज्यादा है क्या? ऑब्वियसली इफ इट इज अ कार्बन नेटिव प्रोजेक्ट्स, राइट, लाइक कोल इज देयर, फ्यूल इज देयर, स्टील इज देयर, सीमेंट इज देयर, एनीथिंग विच इज इमिटिंग टू मच, क्लाइमेट रिस्क ऑब्वियसली रहेगा। अब आता है क्वेश्चन कि स्टेक होल्डर इसका डिमांड करेंगे क्या? It will be three. It will be three because it will be हाँ, highest. It can't be two. 3 रहेगा। करेक्ट। मतलब यहां तो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब क्या इसमें आप एक तो डाल ही नहीं सकते हो। आउटसोर्स कर सकते हो क्या परचेज गुड को? हाँ कर सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं कर सकते? हम आधा प्रोसेस, मैं केवल असेंबली करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग हम्म। बिजनेस में असेंबलिंग इज अ न्यू कंसेप्ट। So मान लो, our understanding here was if we are outsourcing the purchase good, then हाँ तो परचेज we गुड कर ही सकते can't. हैं ना। इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं क्या, पहला ये क्वेश्चन है आपसे। मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबिलिटी है क्या? सर्विस में तो डेफिनेटली नहीं, पॉसिबिलिटी है। नहीं हो I think सकती है, no. हो सकती है। कार की Semi finished मैन्युफैक्चरिंग, products we can buy हो some. सकता है। हाँ, कार में तो Yeah, मतलब yeah, स्टील बहुत होता रिलेटेड है। स्टफ में 100% Okay, पॉसिबिलिटी है ना। okay. तो वो थोड़ा ज्यादा आपको रखना होगा, दो भी चलता मुझे, एक तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है ना। दो। Okay. क्योंकि हाँ, अगर वो आउटसोर्स कर रहे हैं और कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, और इंडिया में अभी ये कल्चर है भी, सब चाइना से हम लोग मंगा लेते हैं, यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं और बोलते हैं Hmm. मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो कौन सा मोबाइल था जो डेड हो गया, हमारा माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स मोबाइल। Micromax, दो की है। या Micromax. सारा कुछ चाइना से लेके आता था यहाँ पे असेंबल करके। Even सेम I guess थिंग, boat is also doing the same thing. same, everybody, most of them does, but they say to get the subsidy, there is very good example that you can fool government once, maybe twice, but not thrice. And when they come back to you, company like Hero collapsed. Are you aware about that? हीरो का एक प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कितने लोगों को मालूम है? हीरो बनाती थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक भाई ने, Now there is na Hero Vida is there na. हाँ, Now Vida, to हीरो वीडा, हीरो वीडा इज हीरो होंडा's हीरो वीडा, ओके। दे हैड अ subsidiary. हीरो मोटर्स, नॉट हीरो Moped, मोटर्स, mopeds. हाँ, दैट वाज इन Mopeds. गुरुग्राम, अपोजिट टू ग्रांड थॉन्डन के बिल्डिंग का, मतलब वो जो ऊपर में सेक्टर 4 जाने के लिए रास्ता जो ऊपर से जाके रिटर्न आता है गुरुग्राम में, राइट में ही बड़ी बिल्डिंग है, अभी भी बिल्डिंग है, बोर्ड भी लगा हुआ है, काम नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उन पे बहुत जोर से क्रैक करी। ईवी इंडस्ट्री है तो आप लोग को भी जानना चाहिए, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। वो एक भाई चला रहे थे, इतने बुरी तरह से फंसे हैं कि कोर्ट केस तक चल रहा है ना। बहुत सारा सैड केस है, ये सेम ही फैमिली सेम है, बट वन ब्रदर आफ्टर, जो हमारे क्या नाम था, जो जिन्होंने हीरो साइकिल से हीरो मोटरसाइकिल बनाई थी, स्प्लेंडर, जिन्होंने प्रोड्यूस करा था, ब्रिज मोहन, राइट, ब्रिज मोहन मुंजाल और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। तो उनके दोनों बेटों को, एक बेटा को ये दिया, दूसरे बेटा को आइस इंजन दिया। छोटा बेटा इनिशियली फर्स्ट 3 years ही मेड रियली बिग, ओके, सेम लाइक अंबानी, मुकेश अंबानी एंड, सो ये हिस्ट्री जाके देखिएगा। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी वहां पे, सब कुछ आउटसोर्स कर रहे थे ये, और गवर्नमेंट से जाके क्लेम कर लेते थे कि मैं इंडिया में ही बना रहा हूँ सब कुछ, है ना। होंगे कोई कंसल्टेंट उनको गाइड किया होगा इनिशियली कि भाई कुछ नहीं होता, मैनेज कर लेंगे, अंडर टेबल ओवर टेबल। तो पहला फेम वन में दे वर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। फेम वन में, फेम वन आप लोगों ने सुना है? किसी ने सुना है फेम वन? हाँ हाँ yes yes. अच्छा, वो किसी ने सुना है? भाई डाल देना एक समरी बना के, अगर राजश्री या ठीक है निपुण, यू गेट फिर. टाइम, just put that Yeah story, very interesting yeah story, you guys should know. So yes. it was a government scheme through which they were giving subsidy. So you manufacture a scooter, actually today also electric vehicle comes at half of the price. Actually the BOM cost itself is double of what they sell into market. 1 लाख में कुछ नहीं मिलता भाई, आपको 50,000, 70,000, 80,000 में ओला बेच रहा है, करेक्ट ना। ओला वन, ओला टू, वो एक्चुअली This is कॉस्ट, because of the PLI benefit na. PLI FAME was benefit, a absolutely, FAME was a predecessor to PLI. Now yes, PLI has come for vehicles, it was for vehicle, for PLI for vehicles. vehicles, that's why they have Yeah. used that term. So they collapsed, और वो कर क्या रहे थे, यही आउटसोर्सिंग पूरा कर दे रहे थे सारा काम, क्लियर। तो पॉसिबल है मैन्युफैक्चरिंग में, याद रखिएगा, और ये केस हमेशा याद रखिएगा, एंड For the राजश्री हैज capital कमिटेड।
Sorry. For the capital good thing where we have to see, हाँ चलो ये भी कर लेते capital हैं, एक और goods. कर लेते हैं, कैपिटल गुड भी कर लेते हैं, नो बिकॉज प्रॉब्लम। इसका इसका तीन ही बड़ा है, एक हो गया आपका यूज्ड ऑफ सोल्ड प्रोडक्ट्स, परचेज गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यही तीन सबसे बड़ा है फॉर दिस इंडस्ट्री, फॉर दिस कंपनी एटलीस्ट। बाकी सब छोटा होगा। कैपिटल गुड्स आई थिंक द आउटसोर्स्ड विल बी थ्री, बिकॉज कैपिटल गुड्स इज मोस्टली आउटसोर्स्ड, means outsourced means basically machinery and all this you नहीं will नहीं be नहीं 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 getting नहीं from नहीं नहीं, outside. कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। आप कंफ्यूज हो रहे हो राजूश्री। आप समझिए, कैपिटल गुड आप परचेज कर लेते हो ना। अगर हाँ, आप यहाँ पे आउटसोर्सिंग मतलब हायर परचेज कर रहे हो। हायर परचेज अच्छा, मैंने लीज, कहा, हाँ बेसिकली लीज कर लीज आप रहे हो बोल रहे तो वो भी लीज, लीज गुड में नहीं, आप हायर परचेज कर रहे हो, मतलब अभी ओनरशिप उनके पास है, आपको केवल हो। ऑपरेट ओके, करने के लिए दिया है ना। न्यू ऑपरेटिंग कंपनी है, लीज। ओल्ड कंपनी है तो लीज में आ जाएगी, उसको ट्रांसफर कर देना होगा लीज के साइड में, है ना। तो आप याद रखिएगा, अच्छा। कैपिटल गुड इज ऑलवेज ए डिसीजन वेयर यू कैन नॉट आउटसोर्स एनीथिंग। अब कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत डिफिकल्ट है कैपिटल गुड्स, क्योंकि मशीन लेके आ रहे हो ना आप, जेसीबी मशीन, हम्म, इंस्टॉलेशन, तो वो आउटसोर्सिंग आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे वन हो जाएगा कैपिटल गुड, क्योंकि इसका कोई बड़ा अच्छा। डिसीजन ही नहीं है, इसका कोई और डिसीजन ही नहीं इन्फ्लुएंस पे भी, इन्फ्लुएंस भी वन होगा ना, बिकॉज वी कांट टेल द सप्लायर दैट आप मेरे को ये एंड ऑफ लाइफ दो, बिकॉज वी आर है। ऑल अगर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियली कंपनी है, ऑब्लाइज्ड। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो बहुत डिफिकल्ट है, इन्फ्लुएंस भी आपका बहुत कम है, क्योंकि जो मार्केट में बन के बिक रहा है वही मिलेगा ना आपको, नहीं तो आपको टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड करनी पड़ेगी, मतलब आपको R&D करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट अलग हो गया ना। तो आप यस। फिर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे, और गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होगा। तो इन्फ्लुएंस भी वन हो जाएगा, आउटसोर्स भी वन हो जाएगा, बट साइज विल बी वेरी ह्यूज, क्लाइमेट रिस्क विल बी यस। अगेन थ्री, एंड स्टेक होल्डर विल बी ऑलवेज थ्री। और ये डिबेटेबल है गाइस, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो क्लियर कट आंसर, Uh, एज लॉन्ग एज यू कैन जस्टिफाई, यू कैन राइट बिलो दैट दिस इज माय जस्टिफिकेशन। क्लियर? uh, so for this only, our why we kept three is like whatever capital goods which we are using. Let us say this infrastructure and the factory machine and the equipments and all, they will have the highest influence over the emissions. So thinking about that, we kept it as three. You will have highest influence on the emission. So you say that you can replace your machines, capital goods, and control it. That's what you mean? No, 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 not that. Like, I that is can't what it replace means. it. This is No, what I no. mean. Okay. No, you can't Replace it. तो इट विल replace बी it. वन देन ना। हाँ तो वन हो जाएगा ना, कम होगा ना, फिर आपके पास उतना वो इन्फ्लुएंस नहीं है ना। और अगर आप Acha, I अपोजिट can't बोल, change it. you Okay. can't दिस change it, इज so it's बेसिकली, low. Rajeshri, you My had a thought was point there. Go okay. ahead. Tell what is your point, I sorry. was saying that this is basically bargaining power. So let's say, for Correct. example, you are taking goods from Bosch. Okay, Bosch. Now you are taking machinery from Bosch. Very good machinery. Now Bosch is not giving you the life cycle assessment data. Now you cannot go and say that okay, tomorrow you will change all the machinery. It will have a massive impact on your P&L. Your orders will get cancelled. Your clients will go out, so you don't have that bargaining power with a big manufacturer. So technically here influence means what you can do in your capacity to reduce the emission. Purchase goods, you can go for a good raw material, that is a separate thing, but you cannot change your machine manufacturer overnight. It will take a lot of time, as Vivek said. Okay, okay. Replace करने के लिए you have to do R&D, Poonam. Yeah, it is something which will require a lot of changes. It is not अब that देखो, easy to do. Alternatives are not there. absolutely. But why I said I didn't want it to confuse you, but remember one word which I'm saying and write it down. Don't try to dig. But the answer is this: it depends. And let me give you the counter argument now. Just now we said you have no influence, right? You have to do so much of gestation period. If this is a company on the year zero, this is a company under Then planning. we have, Of course you yeah. have. So that is the assumption you have to do in such kind of question, or send a question to your supplier of data.
Are we talking about the new company or are we talking about the old company? Is it not a good question to ask? Yes. Are we doing baseline calculations or are we doing second year reporting? Is it not a good question to ask? Yes. प्लीज नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन भेजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट शोज योर टैलेंट. याद रखना, कंसल्टिंग या आपको कंसल्टेटिव कंट्रोल इन योर कंपनी, विच एवर पोजिशन यू आर, ऑलवेज कम्स व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस. लिख लीजिए कहीं पे, गीताई, वरुण, पीपल हु आर लिटिल शाई, राइट, दे शुड तो 100%, जो कैमरा नहीं चालू कर रहे हैं उनको मैं बोलता हूँ, है ना, उनको शाई बोल रहा हूँ, वो उनको नहीं बोल रहा, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ. सो आई एम सेइंग शाई पीपल हु डू नॉट स्टार्ट द कैमरा. ओके, सो इफ यू आर अ शाई पर्सन, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आस्क क्वेश्चन. ओके. सर ऐसे तो कोई भी अपने मन से मतलब वैल्यू डालेगा, इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन रहता है क्या? हाँ, अब आपका क्वेश्चन सही आया. इसी के लिए मैंने बताया स्टैंडर्डाइज आंसर तभी आ सकती है जब आपको क्लैरिटी हो कि आप क्या, व्हाट इज द डेटा. इसी के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी दिए, गीताई. आई गिव यू 2 यस सर। क्वेश्चंस. व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? इज दिस कंपनी इज न्यू और ओल्ड? If ओके। this company is not, by the way, you will not get imaginary data, right? The data is ingrained in some practice. So यस once you सर। will ask me, then only I will give you the clarification. No. Otherwise, what is my interest to give you all the clarity on planet Earth? Why I should waste my time? करेक्ट। Rajushree, everybody's time is important, Gitai. You have to understand. I'm यस। not busy. I have 10 other works. You have asked me additional work. Always remember, Nipun, when you send a data set from even from your supplier, उसको लगता है एडिशनल काम है, इसके लिए थोड़ी पैसा देने वाली है ये कंपनी मेरे को. And hence you will always get incomplete data. Always remember, the moment यस। you assume that सामने वाली पार्टी आपको पूरा डेटा दे रही है, आपका मिस्टेक हो गया. You made the mistake. And that's your mistake. That's not the client data mistake. That's your mistake. Did we learn this very clearly in the class? Yes. यस। Clarity है ना. Next time say without asking question, you will not let anybody, including me, go. If I have given you activity, means I have given you data. Now you have all right to ask me a question on that data. Clarity? Okay. Now quickly fill this up. So capital good means size will definitely influence because it will have large size in manufacturing company. Influence, if it is a old company, even though it's a new company, means at least 1 year तो होगा ही ना, तो capital good तो purchase हो चुकी है. So it will be low. Your control will be low. Influence wise, you can't change it immediately because your bosses has bought. Can you go and change it? You are not owner of the company. You might be a consultant, you might be advisor, you might be a employee, maybe KMP, but you can't change it because shareholder will never agree. Then comes climate risk. Climate risk due to capital goods. Absolutely, it will be high. Not 2, it will be definitely 3. Why 3? Tell me why not 2? Why 3? Why not medium pathway? Why not? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बड़ी हेवी Yes. इक्विपमेंट ही चाहिए होगी, है ना, कंपेयर टू योर प्रोडक्शन. अब मान लो कि कोई बोल सकता है यहाँ पे सर हैंडलूम की कंपनी है. अरे हैंडलूम में भी वो हैंडलूम का भी जो मशीन आता है बहुत प्रीसियस होता है कंपेयर टू व्हाट दे आउट गिव द एज ए आउटपुट. Yeah, power loom. Power looms, etc. Those are costly as well, right? And those have some carbon footprint. So, Gitai, your question was, if this is imaginary stuff, of course, nobody can write anything. And that is why this was given to you. So you ask question, is it imaginary stuff, sir? I will tell you not. Then you will ask me second question. Then you will ask me third question and you'll get the data. Clear? And then you can Yes. make this scoring. Share stakeholder. Does a stakeholder has so much of, means, can we consider that while selecting this criteria, capital good? If the stakeholder is aware, then he will always ask the question, right? That give me this data. So who are those stakeholders who can ask the question on capital good This will be climate emission? FPIs.
foreign investors, So mutual only funds. investors. Remember, if investor is very critical for you, then it is very high. Otherwise, there are 10 more stakeholder community. You have community as well, right? You have employee as well. Do they care about that? How much carbon footprint of your machine is? It has been No. bought, it has been given to them. They have no influence apart from one stakeholder, which might command. So two could be a right answer, but definitely not three in this case. Why? Because not everybody is interested in capital good. Neither they can change. Can Getai, you can change capital good. प्रोटेस्ट करोगी क्या जाके? नहीं, मेरे को कैपिटल गुड पूरा चेंज करके चाहिए, पूरा ग्रीन लेके आओ, ग्रीन स्टील बिठाओ मेरे कंपनी में। बोलेगा भाई गीताई, यू कैन लीव, $300 मिलियन हमारे पास नहीं है एक टन के प्रोडक्शन के लिए। यस, and this is the reality. So always look from that point of view. So a stakeholder, only investor who might have a judgment, and that's a good answer, right? But rest of them has nothing to do and no control, hence we cannot talk about that. आउटसोर्स, कैपिटल गुड में आउटसोर्सिंग का कोई बड़ा चांस नहीं होता है। कैपिटल गुड जनरली लोग खरीदते हैं, दे पुट इट, दे काउंट आउटसोर्स इट, ओके? सो इट विल बी वन। sector wise capital good could be higher. Hello? Yeah. क्लियर? सेक्टर वाइज, सेक्टर में कैपिटल गुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? व्हाई वन? टेल मी व्हाई वन, रीजन करो भाई जल्दी। गुड, Poonam is writing, so we can. My reasoning was that we can't change it. Thinking of that, I kept the one No, as a sector, as a सेक्टर के sector. बारे में बात कर रहे हैं ना हम। तो सेक्टर हम बात 3 कर होगा। रहे हैं कैपिटल गुड, ये सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? सेक्टर So like चाहे, buildings and all will be there. So यस, sector, no, sector as a manufacturing sector, will they be concerned about capital good or not? That's the question we are answering here. सेक्टर में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, जैसे बीआरएसआर में अगर किसी ने किया होगा तो याद होगा नंबर, आई थिंक 7 इज पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी पे रिपोर्टिंग करनी होती है। किसी ने देखा है बीआरएसआर के 9 प्रिंसिपल्स? यस, रोज देखो। या so उसमें जो रिपोर्टिंग है पब्लिक पॉलिसी पे है, वो सेक्टर की बात हो रही है कि सेक्टर इसके लिए कंसर्न रहेगी क्या, सेक्टर पुश करेगी क्या कैपिटल गुड प्रोवाइडर ऑफ दैट इंडस्ट्री टू एडजस्ट, मेक बेटर प्रोडक्ट, रिड्यूस कार्बन लोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट इज व्हाट वी आर जजिंग हियर, है ना? तो अगर वन लिखेंगे तो हम ये बोल रहे हैं सेक्टर कैन नॉट सजेस्ट, सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्टर कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, सेक्टर ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो, आपके पास पावर नहीं है। बट अगर सेक्टर के सारे प्लेयर मिल जाए और बोले कि नहीं, मेरे को रॉ मटेरियल जो आ रहा है, कैपिटल गुड जो आ रहा है इस इंडस्ट्री में, वो क्लीन ही आना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CII। यस, नाउ कल हो गया ना, डिसीजन हो गया, 31 से यू विल स्टार्ट मॉनिटरिंग द डेटा, 30th जून से आई बिलीव, फॉर 429 इंडस्ट्रीज जिनका कार्बन क्रेडिट नंबर आना है। CCTS सिस्टम में जो ऑब्लिगेटेड एंटिटी हैं उनका डेटा आना है, उनके लिए ऑलरेडी लेटर जा चुका है सारे इंडस्ट्री को, क्या आपको अब डेटा कलेक्ट करना है, जून 30 को देना है डेटा, पहला डेटा। अक्टूबर में ट्रेडिंग चालू होने वाली है। तो इंडस्ट्री अगर चाहेगी कि सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री शुड बी ग्रीन इन इंडिया, दे माइट फोर्स, बट यू एज ए इंडिविजुअल प्लेयर यू विल नेवर फोर्स। क्यों? क्योंकि बोलेगा ठीक है तू मत खरीद, मैं तेरे कंपटीशन को बेचूंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यू विल बाई 300 करोड़ का स्टील का न्यू प्लांट, ओके, ग्रीन वाला, और सारे लोग कार्बन इंटेंसिव प्लांट लगा के बैठे रहेंगे। क्या ही करना है, $100 तो $100 तो देने हैं। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट 1500 to 2500 का रेट लेके बैठी है, कुछ नहीं है, $15 है। Are you getting the point? So they will say, I will pay that penalty, but let me emit too much rather than invest in capital good.
So individual player will have less say compared to the industry. Is it clear, everyone? Yes. इंडस्ट्री को ज्यादा से है और वो चाहेगी तो इसमें फोर्स कर सकती है, हेंस एट लीस्ट टू और थ्री, या नॉट वन। चलो एक और ले लेते हैं, अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ। Okay. ओके, सो दैट क्लैरिटी आएगी। अब क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल बताऊंगा, आप बताओ कि क्यों थ्री होना चाहिए। सो पूनम, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई इट शुड बी थ्री, क्विक। So like Significance. for the pump manufacturing, whatever steel and metal they are purchasing, so they will be some these things, na, like it will be coming and going. That's why we kept it three. It will be having the higher influence. करेक्ट, लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा होगी रॉ मटेरियल को Yes, लेके lot of आने की। things will be purchased for एब्सोल्युट, this. एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट यू थिंक निपुण, वाई थ्री? अच्छा चलो आपसे दूसरा वाला पूछते हैं, वो क्लैरिटी है। इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट वाले का कार्बन फुटप्रिंट पे? इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा निपुण? Moderate. मॉडरेट इन्फ्लुएंस होगा, क्यों? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा टोटल एमिशन को। दैट्स राइट। हाँ, दैट इज वाई द अमाउंट विल बी लेसर कंपेयर टू परचेज गुड। परचेज गुड ज्यादा यस। कार्बन फुटप्रिंट कैरी करेगा कंपेयर टू अपस्ट्रीम ट्रांसपोर्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, लेट्स गो टू राजूश्री। व्हाई क्लाइमेट रिस्क हैज टू बी 3, 2, 1, whatever number? First of all, what number you are proposing? Climate Climate risk risk. will be 2 Why? because again, given the nature of the upstream transport, means its contribution to the entire thing might not be very high from It from will be a very high. relevance. Okay, so understand this. It will be high. Why? Because it is a transport business. इसीलिए इसको हमने वन So नहीं how रखा much इसका influence। distance we are covering? ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, कुछ भी हो, डिस्टेंस Yes. तो ऑफकोर्स ज्यादा ही होगा, पोर्ट से लेके आना Hmm. होगा, पोर्ट पे आपका नहीं है, वो सब भी कैलकुलेशन है। बट इंडस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? वो इंडस्ट्री मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, Logistic ट्रांसपोर्ट। वाले। ट्रांसपोर्ट वाले सबसे ज्यादा पोल्यूट करते हैं। सो दैट इज व्हाई क्लाइमेट रिस्क कमिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी हाई। ओके, इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। इन्फ्लुएंस तो हमने कर लिया, इन्फ्लुएंस को हमने मॉडरेट पे रखा है। हम लोग हाई भी कर सकते थे बट मॉडरेट पे रखा है, क्यों? क्योंकि But उसका क्वांटिटी कम है। मैं size significance पे I am thinking 2 is the better outcome, not 3. Why size Because significant? see again, there are, when I was looking into this entire categories, there were 3 main categories which I would give 3. Okay. One is purchase good, second is capital goods, another is used of sold products. These will be 3 That according to me. undoubtedly that is good. That is good So answer. that is why I will always see, whenever I categorize, I can't give 3 to everyone. I have to see that step gradation where which is the highest share that will be having the size significance. So this is also important. I am not saying it's not important, but it won't be as important as the 3 which I mentioned. So I will go for 2 for size significance for upstream transport, at least for this industry. Okay, that could be your answer. That could be your answer. I'm no one to make a judgment on that. That could be your answer. But 3 is also a size significance, and the reason is fuel used in transportation will be always high, and it has a maximum carbon dioxide emissions. However, influence I can have lower because it's a third party, first of all, supplier. Today, if I will ask him, he will never Correct. change. He will take 5 year time, right? Because other suppliers also has to change. He will say why I should go to battery. Matlab, solution is there. Correct. Solution is ready solution. You give me all battery operated trucks. He will say I will not give. Tesla is charging me crores of rupees. I will not change that. Can you But give me that this investment? will become 3 if he has a dedicated freight for me. Then it will be a 3. No. Even If though he, it's a dedicated, it won't happen. Means we had a head, and he has come and given a very free session for everyone. You can go ahead and check in Future Escape. okay, Hellman करके company है जर्मन की. They supply your logistics supplies to all premier textiles like H&M, etc. Right? And they said very clearly, and this is the matter of understanding as well, कि boss influence आप
कर आपके लिए डेडिकेटेड भी दूंगा मैं, तो आप मेरे लिए एक ही कस्टमर हो क्या? एक ही कस्टमर रहोगे तो मैं मान भी सकता हूं, तो मैं तुम फिर Also, सब्सिडरी हो गया। dedicated means I am talking about a single customer. I'm not talking about a Then that is offtake agreement. You are saying that that is the only yes, guy who is supplying. Okay, then correct. then of course you can put that assumption, right? Three, you can do that. Allowed, 100% allowed. Put that Yeah. assumption, but If ideally you are ऐसा let's होगा say नहीं. if you are Logistic let's say 90% customer, let's say for example, I am Ambuja. Okay. 90%, 70%, 30%, that's not a debate. If you have a assumption, you can always write a number that I have allowed. But Yeah. please don't go to the extreme that assuming that a manufacturing company will have a supplier, upstream transporter, right, dedicated for them. अरे बॉस, इतना बड़ा बिजनेस थोड़ी होगा। अगर इतना होगा तो फिर वो अडानी अंबानी बनेगा या टाटा बन जाएगा। क्लियर है? स्टेक होल्डर पे आइए क्विक। अब लेट मी गो टू गिताई। स्टेक होल्डर गिताई, व्हाट नंबर यू विल गिव? सर मुझे कंटिन्यू कहाँ से यार। नहीं नहीं, वी आर आस्किंग यू स्टेक होल्डर के लिए अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? विल यू गिव अ हाई, सर मॉडरेट। मॉडरेट, एंड रीजन व्हाई? व्हाट इज द रीजन यू विल गिव मॉडरेट? स्टेक होल्डर कंसर्न रहेंगे क्या आपके अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन के इमिशन से? रहेंगे, पॉसिबल है, करेक्ट, रहेंगे। नहीं बहुत ज्यादा, वन भी दे सकते हो आप, क्योंकि उतना ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे सर स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट होगा। हाँ, So it will depend on डिपेंड what ऑन we are इन्फॉर्मेशन। importing, na? what, sorry, We are importing what we are importing. what you are importing. If you are importing, say, what you will import? Steel, right? If you are importing हाँ. steel, who all are the stakeholder who will make this decision on your behalf? Who will So, get so, impacted because of this? so I can purchase steel from Mumbai only if I want. If I don't want, I can purchase from China also. नहीं, कहीं से But भी their स्टेक transportation होल्डर कौन? distribution will be नहीं नहीं, डिसीजन कौन मेक कर रहा है, किसको इंपैक्ट होएगा? हु आर द पीपल हु विल गेट इंपैक्टेड बाय दिस ऑपरेशन? me. दैट्स इट, अपार्ट फ्रॉम यू। स्टेक होल्डर So में the क्या क्या है? same like नहीं नहीं so इन्वेस्टर ही same like सर। for नहीं, capital goods we were saying stakeholders will be having influence on like how what we are नो, sourcing. विच So आर द, same way they can have effect on how we are sourcing also. no, that is the question. You didn't understood the question. I am asking you, who all are a stakeholder, first of all, for you in a manufacturing business? List them down. Customers, इन्वेस्टर, investors, Investor, number one. Second, कस्टमर customers, ऑल्सो। customer. Second. Third, community, who? Employees. Employees. एम्प्लॉयज। Community 4, supplier 5, then count on, count on. Regulators, right? These are the major stakeholders are there. Now, Poonam, tell me what you are trying to tell. Who is getting impacted out of these six? So like um, same way the capital good in capital good also we were telling that what we are sourcing on that basis investors can have the influence that they want to invest in our company or not. So similar way from where we are sourcing on that basis also maybe they can have a influence. How? देयर इन कैपिटल गुड आप भूल गए। हमने बोला कैपिटल गुड में कि एक ही आदमी इन्फ्लुएंस होता है, कौन होता है? आपने investor, सुना पूरा? इन्वेस्टर। SPIs. सप्लायर Yes. को कोई मतलब नहीं है कैपिटल गुड्स से, राइट? ही सप्लाइंग हिज रॉ मटेरियल, ही डजंट वांट टू इंटरफेयर व्हाट काइंड ऑफ मशीन एंड व्हाट काइंड ऑफ मशीन, व्हाट काइंड ऑफ इमिशन दैट मशीन इज मेकिंग। क्लियर? And hence nobody, employee also is not concerned about can he do anything about it? Can he say no sir, मैं केवल ग्रीन वाले टेक्नोलॉजी पे काम करूंगा, नॉर्मल वाले मशीन पे काम नहीं करूंगा? ऐसा बोल सकता है क्या एम्प्लॉय? सो ही हैज नो कंट्रोल। सिमिलरली यू आर सेइंग, सिमिलरली अप स्ट्रीम में आइए आप, है ना? तो मैं आ गया अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में इन्वेस्टर को कोई मतलब है क्या कि कौन सा आपने ट्रक यूज किया है,
बच्चों वाला ट्रक यूज किया कि चाचा वाला ट्रक यूज किया, उससे मतलब है क्या इन्वेस्टर को? आई एम आस्किंग यू अ डिस्टेंस क्वेश्चन। से तो मतलब हो No, सकता है no, ना no. सर? क्या, कैसे बताइए, इन्वेस्टर को कैसे मतलब है उससे? आप कहीं से भी मटेरियल लेके आओ, कोई भी सप्लायर से लेके आओ, एज लॉन्ग एज दैट सप्लायर गिव्स यू एट ए गुड प्राइस, आई एम ओके। ओके। आपने देखा उसका इन्फ्लुएंस भी तो कम ही था ना हमारे पास, हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्या ट्रांसपोर्टर को? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको बोलना पड़ेगा कि सर पूरा आपका आइस इंजन हटाओ और बैटरी लेके आओ। वो बोलेगा सर मैं लेके आ रहा हूँ टेस्ला का, वो कौन सा कार होता है, कौन सा ट्रक होता है, टेस्ला ट्रक। वो बोलेगा 5 करोड़ का आता है सर, टाटा वाला 20 लाख का आता है। लेके आता हूं, आप मेरे को 5 करोड़ का एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दे दो, हर एक किलोमीटर पे 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दो मुझे। आप दोगे क्या पूनम अपने कंपनी में? नो। अगर आप नहीं दोगे तो इन्फ्लुएंस आप कर सकते हो क्या? आप उसको बोल सकते हो कि बैटरी लेके आ जाओ। और ये बहुत रियल एग्जांपल है। HUL ने करना चाहा, कोई भी कंपनी जो करना चाहेगी ना, सामने वाला इसी तरह से रेजिस्टेंस देता है, और सिंपल रजिस्ट्रेशन है। दे विल सेंड अ लेटर सेइंग टू यू, आई एम रेडी टू शिफ्ट टू बैटरी, गिव मी पर किलोमीटर वाइज नेक्स्ट 10 years ₹20 एक्स्ट्रा, दैट्स इट। या 5% एक्स्ट्रा भी आपसे मांग लेगा, आपका कंपनी अलाउ करेगा कि आपके पास मार्जिन है क्या उतना? आर यू गेटिंग हाउ टू अप्रोच दिस? Look, I am not telling you that we are in debate. I am telling you how to approach. You have to learn. If you can't Yeah, through learn this that, debate only I'm learning. या सो आई कांट डू द डिबेट फुल। पूरे Hmm. प्रोग्राम में 4 वीक थोड़ी डिबेट करूंगा मैं, आपको 10 ही मिनट बताऊंगा ना। मैं आपको फिशिंग बता सकता हूँ, फिश नहीं ला के दे सकता हूँ। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, और आपको जस्टिफिकेशन लेके आना है। इसलिए मैं आपसे रीजन आउट कर रहा हूँ, सबसे, आपसे नहीं, Hmm. सबसे, निपुण से, राजश्री से। रीजन आउट किस लिए की जा रही है? कि एक रीजन है, स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, और इस क्राइटेरिया के लिए ही 5 लोगों का ओपिनियन लोगे ना, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। क्योंकि हमेशा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज बेटर देन द इंडिविजुअल डिसीजंस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एनिमल भी बच्चा देता है तो वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेता है इमीडिएटली, है ना? वो क्यों ऐसा है? क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ओवर होमोसेपियन के पूरे साल, बिलियंस ईयर्स का हमारा जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा ही है, हमने वो सीख लिया है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस तरह के स्क्रीनिंग पे, मेटेरियलिटी के डिस्कशंस पे ओपिनियन लेनी है। ओपिनियन इसलिए नहीं लेनी है कि आपको लगता है कि निपुण स्मार्ट है, या विवेक सर स्मार्ट है, या राजोश्री सर स्मार्ट हो गए। आपको ये नहीं टेस्ट करना है, आपको ये करना है कि सबका मैंने ओपिनियन लिया, अब मुझे बता करना है कि किसका इसमें ओपिनियन राइट हो सकता है, और फिर उसको सेलेक्ट करना है। दैट्स हाउ मेंटलिटी हैपेंस, दैट्स हाउ दिस स्क्रीनिंग इज हैपनिंग। इसलिए मैंने सबसे पूछा। आपने देखा कोई एक आदमी, राजूश्री ने बोला नहीं सर मैं 3 लेना चाहता हूं, जस्टिफिकेशन दो, उसने जस्टिफाई किया। हमने मना किया क्या उसको? नहीं किया। रीजन ये नहीं था कि कुछ भी लिख सकते हैं, रीजन ये है कि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आप लिख सकते हो। अभी आप मुझे जस्टिफाई कर दो कि स्टेक होल्डर में 5 लिखना है या 3 लिखना है। तो हमने उसके लिए अप्रोच क्या बताई? आप पहले लिस्ट आउट करो कि कौन आपके स्टेक होल्डर हैं। ये कोई टफ Hmm. टास्क है क्या निपुण, लिस्ट आउट करना कौन कौन से लोग हैं? No. अभी किया ना हमने, 6 लोगों को लिस्ट किया। अब उसमें से चेक करो कि कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड होगा, इस डिस्कशन के लिए। अब वी कैन डिबेट कि सारे इंटरेस्टेड होंगे, बट रियलिटी पूछिए कि उसको टाइम है क्या मेरे ट्रांसपोर्ट का किलोमीटर चेक करने का उसको? और अगर मान लो मैंने बैटरी ऑपरेटेड से लाया, आइस ऑपरेशन से लाया, कितना ही इंपैक्ट उस स्टेक होल्डर को होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल, अब प्रोडक्शन का मैन जो है, आप किस तरह से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो उसमें उसको इंटरेस्ट है, कि कौन से टाइम और कौन से डेट पे लेके आ रहे हो उसमें उसको इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली उसको डेट और टाइम से है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्लान करना चाहता है। इज इट क्लियर? इज इट गेटिंग लिटिल क्लियरर? और कि ज्यादा कंफ्यूजन है? ज्यादा कंफ्यूजन है तो अभी बंद करेंगे हम इसको, कोई फायदा नहीं है फिर। अगर क्लियर हो रहा है तो आगे जाएंगे। Yeah, better. बेटर है ना? क्लैरिटी आ रही है Clear, निपुण? clear, 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 क्लियर? clear. राजेश्वरी, राजेश्वरी तो हैप्पी हो गया कि मैंने 3 बोला, सर मान गए, अब मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, आई एम डन। नहीं, I was listening. I knew that ये तो होगा नहीं, because I know कंपनीज को हम लोग ही पूछते हैं, थोड़ा मार्जिन गिर जाता है तो हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई मार्जिन क्यों गिर रहा है। अभी तो वो ऐसा कभी तो नहीं नहीं डाल कर। सकते, वो कभी नहीं डाल सकते। और ये आप चेंज नहीं करा सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो आप इस, ये सब, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। ऑलवेज अंडरस्टैंड
कि आपको कंट्रीब्यूशन भी, उसका कार्बन फुटप्रिंट भी देखना है, उस एक्टिविटी का कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा। याद है हम लोगों ने साइज का बात करा, साइज का बात करा, और हमने ये भी बात करा था साइज में कि हमें ये भी देखना है कि उसका क्या पॉसिबिलिटी है, कि बहुत ज्यादा इमिशन होने वाला है क्या। एक अदर क्राइटेरिया था, सेवेंथ क्राइटेरिया, इफ यू रिमेंबर दैट शीट, द लास्ट क्राइटेरिया वाज सेवेंथ क्राइटेरिया, अदर्स। नाउ अदर और मिसलेनियस क्राइटेरिया में एक चीज ये भी जज करना है आपको कि पॉसिबिलिटी क्या है इस इमिशन की। अगर बहुत ज्यादा होने वाली है तो आप उसके पीछे पड़ोगे, नहीं होने वाली है तो पहले ही ड्रॉप करने का। जो इम्पैक्ट लेसर है, लिखिए कहीं पे, जो इम्पैक्ट आपको लगता है कि बहुत ही कम होने वाला है, माइन्यूट होने वाला है, उसको पहले ही ड्रॉप कर देना। क्योंकि आज के डेट में लोग स्कोप 3 रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यू नो दैट राइट, 66% ऑफ पीपल आर नॉट रिपोर्टिंग स्कोप 3। तो मैं तो कर रही हूं ना, तो ऑलरेडी मैं उन लोगों से बेटर हूं, या मैं कर रहा हूं तो ऑलरेडी मैं उन लोगों से बेटर हूं, है ना। ये सोचिए आप, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर कोई बहुत माइन्यूट चीज है जो छूट रही है, उसके पीछे टाइम गंवाने से अच्छा है कि मेजर थिंग को आप पहले हैंडल कर लो, उसके बाद टाइम बचे तो माइनर थिंग में जाओ। क्लियर। और ये प्रायोरिटी आपको पूरी ही सेट करनी होगी थ्रू आउट दिस प्रोसेस। मेक सेंस? कैन वी Okay. मूव टू नेक्स्ट सेक्शन नाउ? तो आपने आधा घंटा किया था, हमने 1 घंटा डिबेट किया। सो यू गाइज वर बेटर। या, यू गाइज वर बेटर। चलिए नेक्स्ट, क्या किया आप लोगों ने? We kept numbers whatever we felt like that time at last. Makes sense, makes sense. True. Yeah. Next, So this was top 5 material category. these were based on the total. You have to write the total and then bring it here. You know the process now, right? Okay, that will do it. हाँ. Next, Next is the category deep dives. yes, So in this, first question was like 50 lakh of cement is been purchased at the cost of 0.85 kg CO2 equivalent yes, per rupees spent. So on that basis, I calculated like 4,250 tons CO2 equivalent will be emitted in this scenario. absolutely. Correct number है. So just direct Just a minute, multiplication. just a minute. अच्छा, आपने 50 लाख रुपीज का किया, ठीक है, और डिवाइड किया है Hmm. 1000 से, राइट? यू हैव डिवाइडेड बाय 1000. Yes, for ton. Perfect. Always report in ton. This is again a nuance a lot of people miss. By looking at the emission factor, they try to write the answer also in emission factor. Emission factor always written in tons. Why? Because world में सब लोग टन में ही रिपोर्ट करते हैं. Clear? Okay. I just turned to ton because too many numbers was coming, so I just minimized it. छोटे भी रहेंगे तो भी टन में ही आपको लेके 0.02 कर दीजिए, बट यू हैव टू. Okay. So next was in your organization is category 1 relevant? Which calculation method will you use? What single biggest data gap you exist? So I told yes, very much relevant. Supplier specific method will be the preference. So for calculation, supplier specific I will prefer. It might be that the difficulty will be that the supplier will be unaware of the emission rate from their products. करेक्ट है. नेक्स्ट. Yeah. So next comes the capital good. In capital good, again for one CNC machine, 8 ton mass, like one CNC machine is there with mass is 8 ton. Emission factor is 3.5 kg CO2 equivalent per kg. So what will be the emission? So according to that, I calculate 28,000. इसको करेक्ट So करना होगा आपको. 28 टन आएगा आंसर. ton in 28 kgs. हाँ, मतलब tons. हाँ 28 है ना. Yeah. तो अब देख क्यों रखा है हमने, क्योंकि फिर आपका जब टोटल करोगे तो आपको कोई फिर से कन्वर्जन कहीं भी जरूरत नहीं होगी. जो एरर आता है नॉर्मली, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल नहीं, इसका नाम है कुछ, कि अगर आपने सब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में रखा तो बाद में एडिशन एरर्स आते हैं, एडिशन से एरर, वो एरर नहीं Okay. आएगा आपके कभी भी. Mhm. तो नेक्स्ट, कैटेगरी 2. So now the question is, in your organization is category 2 relevant? Which calculation method will you use? The same question. So I told yes, the bioreactors, instruments, computers, softwares, and new facilities and vehicles that we purchased. This reporting financial year will have it will be relevant for these things. And I will be preferring supplier specific data because it will provide accurate and more detailed emission rate. And for the asset like new facility construction, the कंप्यूटर, tracking will be very complex. just a minute. Instrument, computer, software. Bioreactor, I can understand. This might be generating energy for you.
But how the instrument, Okay. computer and software is impacting category 2? Achha, you are treating that as a fixed asset. Okay. Okay, Yes, got it. it is a fixed asset Okay, in got my it. Got it. that's Got it. why. Got it. Got it. ठीक है. So for some Consumable of the नहीं. asset, like if we are creating a new facility, like recently we created one BSL2 facility. So for that, too much of materials we have used. So tracking that will be very complex. So this was, I thought that it will be the Perfect. gap it can be having. So the next one, the category fuel and energy related activities. So for that, here little bit I got confusion, but I think I did okay only. So the question was 10,000 kilowatt of electricity was purchased. According to CEA, T&D loss for my area is 18%, and the grid emission factor is 0.716. So I needed to calculate how much emissions will be there. So I calculated 18% of 10,000. So that was 1800. So multiplied by the emission factor. So this is what I got. Okay. So it will be 1.28 Clear. ton. So you are calculating that. Perfect. It is. This is fine, right? Yeah. Like this way only we needed to do. Yes, you have to write everything in tons. Yes. Okay. So next was like in your organization, it will have effect. Yes, the fuel consumption by generators and upstream emissions and T&D loss of purchased electricity will be having the effect. Which calculation method I will propose. So I told like for purchased electricity, I will be going for activity into T&D loss factor multiplied by the grid emission factor. And for the generators which we will be using, for that we will be going with the activity into the this loss was in a well to tank factor. So with that, we will be multiplying with that, with this method, I can go for the calculation of the generator, and the proper type of fuel consumption within a reporting period can be a difficulty. I think so. So I have a question with respect to this. Yeah. So I think last to last class you were saying that the TND loss is mostly factored in the emission factor for the grids, right? Yes. Now whenever we are getting, let's say India's emission factor is 0.7, right? Now that 0.7 will also include your TND and everything. So we have to, what my understanding was that we have to just put the activity data multiplied by the emission factor and then convert it into tons. That was my idea. Is it wrong or right? नहीं, रॉन्ग नहीं है. यहाँ पे मैंने डेटा दिया है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे एडिशनल टीएनडी लॉसेस हैं. ये ग्रिड का नहीं नहीं टीएनडी लॉस का बात नहीं हो रहा है. वो जैसे नीचे नीचे भी डाला है ना पूनम ने कि एक्टिविटी इनटू टीएनडी लॉस फैक्टर इनटू ग्रिड. तो हाँ ये तो इन जनरल होता नहीं है अरे मतलब. होता है यार राजूश्री. आप So मैन्युफैक्चरिंग this is the कंपनी में one, हो right? ना. Given. No, no, just a minute. He is talking something else. He is saying that if the data is already captured in 0.716, why I'm adding it again? Double counting हो रही है. That's his confusion. What he is ignoring is TND आपके इंटरनल में भी तो हो रहा है ना. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप बिठा रहे हो, आपको 3 फेज का कनेक्शन लेना पड़ता है. समटाइम्स ट्रांसफार्मर खरीदना पड़ता है. वो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मेन लाइन से आपको लेके आनी पड़ती है लाइन एडिशनल. अप ओके एंड हाँ. डाउन करना है, स्टेप अप एंड डाउन. वहां पे भी तो लॉस है ना. वो डेटा आप कैलकुलेट करने की कोशिश अच्छा यहाँ पे कर ठीक रहे है हैं. ठीक है. गॉट इट गॉट इट. ठीक है पूनम, यू अंडरस्टूड एज वेल राइट व्हाट ही वाज आस्किंग. Here, this question, I also got that like this corporate GHG accounting book was there, na? In that, one very good example was there. So, like the person is generating the electricity, giving to the third party is giving to the next person who is using. Like that, 4 component was there. So there they explained this T&D loss. If I वहां पे am मालूम correct. है, वहां पे मैंने मार्केट बेस्ड स्कोप 2 भी Yes. कैलकुलेशन सिखाते हैं. उसी के लिए हाँ अगर हाँ. कोई खुद ही जनरेट कर रहा है ना, तो मार्केट बेस्ड रिलेवेंट हो जाता है इमीडिएटली. और हमारी इंडस्ट्री अब उस तरफ जा रही है कि वी आर डूइंग पीपीपी. एनीवे, दैट्स अ गुड पॉइंट. यू लर्न दैट. यस, एंड दिस आर द फॉर्मूला. यू आर राइट. Yeah. So next this one. So here it was like 200 ton is emitted. Like this category was upstream transportation and distribution. You So got that it. 200. Move fast, move So fast. here, You know the error. What is the error? Rest of the stuff is okay. Go ahead. Next. Wherever you guys are confused, let's go to those. so no, I was not having any confusion here. So waste generation also. Okay, I have done. Okay, sir. Here my question was हाँ तो अभी like कंफ्यूज हुआ है no, ना. वही not बोल रहा हूँ here. ना, कंफ्यूजन पे जाओ सीधा. नहीं तो पूरा टाइम चला Okay. जाएगा.
So this was there, work from home. Ah, So like in employee commuting, how work from home is influencing. This was correct, my question. correct. How? So When you have a work from home culture, you have to account for that. That's how. And it is a score three emissions. Why? Because employee is doing in the home, right? He's not directly doing it in your company. what they are calculating, the electricity I'm using there. एब्सोल्युटली जो भी आपका लैपटॉप में कंज्यूम हो रहा है वो तो स्टैंडर्ड Okay. आपके कंपनी में उसने कैलकुलेट किया होगा, सेम चीज अप्लाई आपके घर के लिए कर देगा। और घर की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है चीपर हो, ये याद रखिएगा। हाँ, सो दैट Hmm. ऑल्सो प्लेज अ रोल हियर। सो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा आपको बेस्ड ऑन, अगर आपने स्पेंड बेस्ड मेथड लिया तो डिफरेंस आएगा। दूसरा डिफरेंस ये भी आ सकता है कि अगर आपकी लोकालिटी में इमिशंस कम हो रहा है ना, जैसे गांव में Hmm. जो लोग जाके आजकल ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर वाले लोग, तो वहां Hmm. पे एमिशन कम होता है क्योंकि वहां पे तो फिक्स्ड बिल भी आती है, उनका सिस्टम थोड़ा लिवरेज्ड है, बट मे बी टी लॉसेस आई है, तो वो सारे फैक्टर आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ है वर्क फ्लो होम का कैलकुलेशन। यहाँ पे तो मैंने एक लाइन में आपको डेटा दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग कूलिंग, मतलब आप घर में अगर कूलिंग यूज कर रहे हो, एयर कंडीशन यूज कर रहे हो, तो वो सारा डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज लिटिल डिफिकल्ट। और वो 24 घंटे का डेटा है, 10 घंटे का डेटा है, क्योंकि घर में तो हमारा ऑफिस के जैसा नहीं होता ना कि एक बार सेंट्रलाइज एसी ऑन कर दिया तो यू हैव फुल। हम अपने काम के लिए भी यूज कर रहे हैं और ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो जो 8 घंटा है उसका डेटा चाहिए मुझे बस, 8 आवर जो आपने Okay. एलोकेट किया है, इसलिए वो नंबर लिखा गया है पर डे बेसिस का एमिशन फैक्टर आपको चाहिए होगा। Okay. What source we can get this emission factor for work from home? Source will From be where we can exactly get? your grid emissions, which is your CEA data for your locality, electricity data, which is coming from your, sorry, AC data, the leaks in your AC. If you have a separate room, then it becomes very ideal. ये थोड़ा है, ट्रिकी है ये डेटा, और नहीं तो हाँ सर्वे वही कराना पड़ेगा। सर्वे कराना पड़ेगा, वही 5 एम्प्लॉय का सर्वे करा लो आप। से बैंगलोर के 5 एम्प्लॉय का मैंने सर्वे करा लिया, एक आदमी काम कर रहा है चेन्नई से, एक आदमी काम कर रहा है कोयम्बटूर से, एक आदमी काम कर रहा है होसूर से। आई विल डू दैट सर्वे दैट हाउ मच ही इज एक्चुअली मीटिंग, और वो डेटा में इंक्लूड करके उसको जनरलाइज कर दूंगा Hey, सब। विवेक विवेक ये भी कर सकते हैं, सी फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ कंपनी लाइक इंफोसिस, राइट? So or any other company, you can get that data from your IT department, कौन सा लैपटॉप को मॉडल गया है, मेक एंड मॉडल every IT department will have, right? And you can put a normal, like let's say 9 to 5 आदमी काम करता है, then you can put an assumption based on that multiply by hours. So how much will the consumption be on the laptop, that will be in kWh, and then you can multiply with the number of hours, then you will get it for a day, then you can multiply it for the working days, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही मैंने बोला भी, so इलेक्ट्रिसिटी का हाँ डेटा आपको निकालना है और उसका इमिशन फैक्टर निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी ही कंज्यूम हो रहा है ना, तो एक्टिविटी हाँ वही डेटा मैं तो बोल रहा आपका आपका ऑफिस से ही मिल जाएगा। जो इमिशन फैक्टर है वो आपके लोकालिटी का होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है इसमें, आपके यहाँ एसी होगा, राइट? आपके घर में एसी हूँ। होगा, हाँ लैपटॉप दैट इज चला रहे हो डिफिकल्ट, तो वो वो डेटा आपको डिफिकल्ट। निकालना पड़ता है, उसके लिए सर्वे कराने की जरूरत है कि 110 लोग so इशू कर रहे हैं कि, भैया टेल मी सॉरी। so sir, like if an employee is working from the office, then that emission is coming as a scope 2. But if working from the work from home, it can go to scope 3, where you do not need to account, and then that also in another category that can be little bit avoided. So can be better scenario for the company in this scenario. अगेन दैट इज व्हाट द कंफ्यूजन इज कि बेटर है कि वर्स है। बेटर ये है कि आपने आउटसोर्स कर दिया, दैट इज व्हाट इट मींस, Yeah, राइट? बट yeah. इज इट नॉट इम्पैक्टिंग द क्लाइमेट? इट इज ऑब्वियसली इम्पैक्टिंग द क्लाइमेट, मे बी मोर, क्योंकि एम्प्लॉय घर से Hmm. ज्यादा काम करता है, एसी ज्यादा चलाता है कंपेयर टू ऑफिस। ऑफिस में जो इमिशन है वो सेंट्रलाइज है ना। यहाँ पे आपके घर में आप अकेले रूम में बंद होके सारे कॉल लेते हो कि नहीं लेते हो? सो यू नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई राइट नाउ, दैट इज व्हाई मेनी कंपनी doesn't like work from home. It's not that they have no control on employee, which is one of the reason you must have heard from employees that they do not know how much the employee is working. But the real reason is control is completely zero, and maybe sometime employees mentally harassed working in home.
ये बहुत कम लोगों को मालूम है, बट ये बहुत बड़ा रीजन है अभी। मेनी एचआर सजेस्टिंग दैट वी शुड ब्रिंग बैक आवर एम्प्लॉयज। Okay. तो बहुत बड़ा डिबेट है, देयर इज नो पॉइंट वी गो इन दैट डिबेट, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। Okay. मूव ऑन। So I completed till category 7 only. After it, I was still working. So तो आप स्ट्रीम एसेट में भी क्या क्या डेटा है आपके पास? सेम डेटा है, 500 एम्प्लॉयज है, 220 डेज है, 22 किलोमीटर है। सो आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे जाइएगा, 8 पे। या 8 पे तो डेटा आपके पास है। 9 में लीज वेयर हाउस है, सॉरी 8, you have to go a little slow because I am getting lost. So यहाँ पे 9 है, ओके। 9 डाउन स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी डेटा इसमें आपको देखना होगा। एक्टिविटी डेटा दिया हुआ है, और ओके, ये सब तो कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं, मींस देयर इज नो we can do डिस्कशन। it. Yeah, it's very simple. Number are given. You have to just plug the number. Instead of kg, you have to always write it ton. Clear? Hmm. That is the input I wanted to give here. Go to 10. Similar stuff. Emission factor is provided for the sold processor. Now, once you will have this calculation done, now go back to the table and check the table once again. Based on each of these numbers, you have each of their number now, right? After you calculate, Hmm. you will come to know how much emission which guy is doing. So you know what is the percentage of total emission is coming from this particular activity. And then you can decide which one you want to include and which one you want to exclude. Do you guys understood it? Because you didn't completed the exercise, this is the missing part. Okay. Once you will have all the numbers for all the activity, you will know the percentage contribution to the total emission. Then you can obviously know na, which one is the lower, which one is the higher, and then you select the top 5 or top 7 or top 10 and justify it. Clear? Isn't we select this category initially only before this all this You practice? no, you do it initially. That's why there was a debate. But you Yes. had an advantage that you had the second answer as well. And this is Okay. how it works. You have to make a क्या बोलते हैं approximation in the beginning, do the calculation and then justify at the end. No, ऐसा थोड़ी कि पहले ही justification देना है। रिपोर्ट कौन लिख रहा है? आप लिख रहे हो ना, कोई आपके लिए थोड़ी दूसरा आदमी लिख रहा है। तो Hmm. एजम्पशन भी आप ही करोगे, रिजल्ट भी आप ही के पास आएगा। तो रिजल्ट जब आता है तो भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड दैट्स हाउ यू राइट योर रिपोर्ट। गॉट इट? So Got you it. do that debate, take a survey. Once input comes, you do the calculation. Once the number comes, then you know which one you are including and why. Clear? Next. Mm-hmm. Again, यहाँ पे याद रखिएगा, how many pumps they have sold, what was the kilowatt hour, kilowatt they have produced for, how many hours they have consumed in a year, and then what is the total lifetime of that pump. So 10 year. You multiply all that with emission factor, you have metric ton of carbon dioxide. Next. Plastic packaging into landfill. How much in landfill it is going? You have to have landfill share of your total emission. Next. Hmm. Leased office 3000 square meter, 110 kilowatt hour square meter per year. You have again emission factor of 0.716, and you have the total emission coming from category 12. 14 franchisee. There is no franchisee here. आंसर आपके पास है, फिर भी आज है यहाँ पे दिया है 120 franchisee outlets are there. Hmm. Check the total number, then our assumption might be wrong. Okay? किलोवाट आवर 0.716 होगा, ज्यादा नंबर होगा इसमें, चेक कर लेना एक बार। तो मे बी दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल। I think this is separate one. The initial scenario what was given is separate and this is just नहीं, ये एक ही है, चेक कर लेना आप फिर भी, चेक। okay. एक ही है। 15 एट्रीब्यूशन ऑफ 100 crore लोन स्टील फार्म एट्रीब्यूशन 0.75, ये तो अलग है डेफिनेटली। Attribution है 0.05 of industry scope 1 and 20,000 tons of scope 2, total of financed activity, and you have to justify it. Clear?
Anybody has any other doubts? We will be completing this module activity, sir. We will be sending you. If we will have question, we will be Yeah, send those asking. questions. We will Send be those. sending that. Okay. Now I can stop screen share. Yeah, there's no point. Perfect, it is. So we'll see you day after tomorrow. Before that, submit the assignment. I've also sent another multiple choice question based assignment. Solve that as well. Yes, I wanted to do that into class as well, but I think let's do it in the next session, both together. So submit both the assignments, and then we are done with the scope 1, 2, 3, and we will start with the next class onwards. Strategy. Okay. Clear? Yes, sir. Okay. See you guys Okay, day sir. after tomorrow. Okay, good night. Uh, Bye. Good night.